Okay, if A and B are in any finite set, then number of A union B is equal to number of A plus number of B set, number of element of B set minus A intersection B. This is your first one. If A and B are disjoint set, it means if A intersection B is 5, then your formula will be equal to A union B is equal to NA plus NB. And your third formula, if you have to find A minus B, it means this is the number of element of A only. Okay, and what is the formula of this one? It means NA minus A intersection B. If you have to find the number of element of B only, then you have to find B minus A. It means the number of element of B only. Okay, so your formula will be B minus A is equal to NB minus A intersection B. Now, this is the representation of the number of element of A, not only. इसमें A के एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें ओनली नहीं आएगा. नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B, इसमें B के एलिमेंट है, इसमें कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये जो है A ओनली और B ओनली वाले, इसमें सिर्फ A के ही होंगे, बाकी कोई कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा. अब यहाँ हम 3 के सेट का भी कर रहे हैं, A यूनियन B यूनियन C. अगर 3 का सेट है तो फॉर्मूला होगा NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C प्लस intersection of all the 3 set. Okay, so this is the whole formula that is related to this exercise. I am taking the first one. I am starting with the exercise. Okay, what is your first question? In the first question, X and Y are the two sets such that the X union Y has 50 elements. It means X union Y, their number of element is 50. The X has 90 element and X, number of element of X is 28 and the number of element of Y is 32. You have to find how many element in X intersection Y. How you will get it? By the first formula where the, if अगर आपको यूनियन फाइंड आउट करना है तो यहाँ इंटरसेक्शन आता है, अगर आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना हो तो ये वहाँ चला जाएगा. By this identity आप फाइंड आउट कर सकते हैं. As we know that we know A intersection X intersection Y is equal to NX plus NY minus NX union Y. Okay, put all these value here. 28 plus 32 minus union is 50 and solve it. You will have here 60 minus 50, that is 10 is your answer. Come to the question number 2. In a school there are the 20 teachers who teach mathematics or physics. एक स्कूल में एक ऐसे 20 टीचर्स हैं जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स और के लिए हम लगाते हैं. यहाँ 2 ही सब्जेक्ट, 2 का नाम इंट्रोड्यूस हुआ है, एक मैथ्स के लिए एक फिजिक्स के लिए. तो पहले हम लेट डिफाइन करेंगे. लेट ए बी द सेट ऑफ टीचर्स. सेट है ना, यहाँ टीचर्स ही पूछे गए, तो ए सेट ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स. Firstly is mathematics, so mathematics, and B is the for physics respectively. मतलब A मैंने उन टीचर्स का सेट बना लिया जो मैथ्स टीच करते हैं और फिजिक्स टीच करने वालों का सेट मैंने B सेट बना लिया. अब वो कह रहा है हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और के लिए आता है यूनियन A यूनियन B. इसके लिए आपको दे रखा 20, तो इसको हम लिखेंगे एन ए यूनियन बी इज 20 इज गिवन हियर. हु एंड 12 टीच मैथमेटिक्स. ओनली नहीं है सिर्फ मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के लिए हमने ए यूज किया हुआ है, तो एन ए इज गिवन हियर इज 12. एंड 4 टीच बोथ. बोथ के लिए हम इंटरसेक्शन लगाते हैं, ये और के लिए यूज होता है, ये एंड या बोथ के लिए यूज होता है. कि अगर ए और बी बोथ के लिए है तो हम इंटरसेक्शन लगाते हैं, और आता है या तो ए और बी पढ़ा रहे हैं तो यूनियन आता है. तो हमें यहाँ दे रखा है कि बोथ पढ़ा रहे हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स,
तो फिजिक्स के लिए ए, सॉरी मैथ्स के लिए ए एंड फिजिक्स के लिए बी, एंड या तो इंटरसेक्शन आया, दोनों बढ़ा रहे हैं तो दैट इज 4. एंड हाउ मैनी टीच फिजिक्स, फिजिक्स मीन्स एन बी आपने निकालना है, तो सेम आइडेंटिटी एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. फर्स्ट आइडेंटिटी से आप इसकी वैल्यू फिर फाइंड आउट कर सकते हैं. ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी minus n a intersection b, and put all the values here and get your answer, where n a union b is 20, n a is 12, n b you have to find, and n a intersection b is 4. 12 minus 4 that is 8, and 8 यहाँ आएगा तो 20 minus 8 is your n b, number of element of set b. So these are the teacher who teaching physics. Okay, now come to the next question. Come to the question number 3. I am taking the third one. In a class there are the 60 boys and the 42 boys. What is the 60? Okay, what is the 60? That is representing the A union B. Clear है? दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. अगर क्वेश्चन में कहा है कि एवरीवन इज इंक्लूडेड इन सम गेम्स और समथिंग एल्स, सो आपको जो टोटल दे रखा होगा वो आपका ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा. अगर कहीं पर बच्चा ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ दे आर फ्यू स्टूडेंट दे आर डूइंग नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, या क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ आ रही होगी, तो देन आपको जो 60 है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा. देन इट्स बिकम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट. ओके, नाउ आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, इन ए क्लास देयर आर 60 बॉय. एक क्लास में 60 बॉय है. नाउ द क्वेश्चन रेजेस कि ये 60 क्या है, एन यू है या वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वेश्चन आगे बताएगा. देयर 45 टू प्ले बॉयज हु प्ले कार्ड्स एंड 30 बॉयज प्ले द कैरम. तो दो सेट है हमारे पास, दो बनाना पड़ेंगे. ए एंड बी आर द सेट ऑफ बॉयज प्लेइंग cards and carom respectively. क्लियर है? अब हमें नहीं पता वो 60 क्या है, ए यूनियन बी है या यूनिवर्सल सेट है, अभी हमें नहीं पता, तो मैं दोनों लिख रही हूँ. दैट इज रिप्रेजेंटिंग 60. हु 45 इज प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स के लिए मैंने एन ए लिखा है. 30 प्लेइंग कैरम यानी कि एन बी, कैरम के लिए बी रिप्रेजेंट किया. 30 प्लेइंग है. ईच बॉय लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन गेम, यानी कि कोई ना कोई बॉय, कोई भी बॉय ऐसा नहीं है जो फ्री हो, वो एटलीस्ट एक गेम तो खेल रहा है. या तो वो कार्ड खेल रहा है या कैरम खेल रहा है या दोनों खेल रहा है. एटलीस्ट वो एक गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है. इट मीन्स ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये हमारा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एवरी बॉय इज बिजी इन सम गेम. ओके, so now what you have to find, use the set operation to find how many boys play in both games. both game means you have to find a intersection b. मैं पहले भी बता चुकी हूँ, both means intersection. you have to find the both game. in the second part you have to find play card only. card means a only है, तो a माइनस बी, दो ही सेट है तो a माइनस बी निकालना है. थर्ड में आपको कैरम ओनली निकालना है, यानी कि b माइनस a निकालना है. क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के लिए हम फर्स्टली वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए यूनियन बी. यूनियन आपको गिवन है 45 प्लस 30 माइनस 60, देन यू विल हैव हियर माइनस 30, 15 इज देयर. सेकेंड पार्ट के लिए आपको ए माइनस बी निकालना है. फॉर्मूला वहाँ लिखा हुआ है, ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए. एन ए आपका क्या है 45 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, अभी फाइंड आउट किया. दैट इज 30 स्टूडेंट आर दो स्टूडेंट हु आर प्लेइंग ओनली कार्ड्स. ओके, थर्ड इज बी माइनस ए. you have to find the number of element of b minus a. it means you have to find n b minus a intersection b or b intersection a, both are the same. so 30 minus 15, that is 15. okay, now come to the next question. Come to the next question. Question number, I am not taking the fourth one, I am taking the sixth one directly. Okay, try fourth and fifth by yourself. Question number 5. In a class there are the 35 students, 24 like to play cricket. 35 student है, फिर वही क्वेश्चन, एन ए यूनियन बी है या एन
वो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स सेट है, वो हम बाद में देखेंगे। द 24 आर प्लेइंग कार्ड्स, सॉरी क्रिकेट, तो मैंने वही बना लिया। ए सेट है क्रिकेट का, क्रिकेट प्ले करने वाले का, और बी सेट है फुटबॉल प्ले करने वाले का। इट मीन्स these are the set of the student who are playing cricket, and this is the set of the student who are playing football. Okay, क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर। आई डोंट नो अभी तक क्या है, तो मैं ए यूनियन बी 35 मान के चल रही हूँ। उसके बाद वो कह रहा है 24 आर प्लेइंग क्रिकेट, 24 जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, इट मीन्स एन ए खेल रहे हैं 24, और फुटबॉल खेल रहे हैं दैट इज 16। ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन गेम, हर बच्चा कुछ ना कुछ खेल रहा है, तो इसका मतलब हमने जो ये लिखा था ये ठीक लिखा है। देन यू हैव टू फाइंड बोथ, यानी कि आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही है, देखो यहाँ ध्यान से देखना। इन द सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट, 400 के स्टूडेंट के सर्वे में 100 आर ईटिंग एप्पल जूस, मतलब ए को मैंने एप्पल, ए बी द सेट ऑफ द पर्सन हु इज टेकिंग द एप्पल जूस, and the B is the set of the person who is taking orange juice। अभी मुझे नहीं मालूम कि 400 क्या है, तो मैं इसको एन ए यूनियन बी लिखूं या यूनिवर्सल सेट लिखूं, मुझे नहीं मालूम। तो आगे देखते हैं हम। 100 इज टेकिंग एप्पल जूस, तो यानी कि एन ए आपको दे रखा है 100। 150 इज टेकिंग ऑरेंज जूस, तो एन बी। नाउ 75 इज टेकिंग बोथ, यानी कि बोथ आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी इज 75। नाउ फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वर नाइदर टेकिंग एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, मतलब वो बच्चे बताइए जो ना तो ये ले रहे हैं ना ये ले रहे हैं। इट मीन्स वो किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर। इसीलिए अगर कोई ऐसे भी बच्चे हैं, क्वेश्चन रेज किया गया है कि ना तो वो ए ले रहे हो और ना ही बी ले रहे हो, तो इसका फार्मूला एक ही होता है। ठीक है, इसका भी बताऊंगी मैं क्या फार्मूला होता है। जब मतलब ऐसा है ना कोई स्टूडेंट जो दोनों एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, इट मीन्स ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये आपके यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर? आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू कि आपने इसको एन यू लेना है या ए यूनियन बी लेना है। अगर कोई भी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इट मीन्स आपका कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व है, तो जो आपको टोटल स्टूडेंट दे रखे होंगे वो आपने टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट के स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो आपने अभी एन ए भी दे रखा है, इंटरसेक्शन भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, तो फाइंड क्या करना है, आपने ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो 75 175 बनेंगे, तो हमें नाइदर और नॉर का निकालना है, ना तो ए काम कर रहे हो ना ही बी, इसका ये फार्मूला है। ठीक है, ये दिस इज फॉर द नाइदर एंड नॉर, नाइदर ए नॉर बी। इसके लिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से आप उसका यूनियन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, माइनस करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में 400 दे रखे थे, टोटल हमने निकाली 175। ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये एटलीस्ट के लिए होता है कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं बच्चे। ए यूनियन बी मीन्स या तो वो ए में होंगे या बी में होंगे या किसी ना किसी दोनों एक्टिविटी में होंगे, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे, तो ये एटलीस्ट के लिए यूज होता है। ये नाइदर और नॉर के लिए यूज होता है, जिसका फार्मूला ये है। क्लियर है। 175 बच्चे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है किसी भी एक्टिविटी में, 400 में से 175 है, देन इट्स यू हैव 225 दे आर दी स्टूडेंट हु आर नाइदर टेकिंग एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन थे जहाँ 2 सेट्स इन्वॉल्व हैं। अब मैं वो क्वेश्चन ले रही हूँ जहाँ पर 3 सेट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यहाँ पर 3 सेट इन्वॉल्व हैं। आउट ऑफ द 40 स्टूडेंट इन ए क्लास 16 आर स्टडिंग इंग्लिश, 22 आर स्टडिंग अकाउंटेंसी। क्वेश्चन नंबर 9 तक 2 सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ए बी चलेगा, तो जो निकालना है वहाँ यहाँ इन 4 फार्मूलों से आप उसको आइडेंटिफाई करते हो। 5th मैंने बता ही दिया, नाइदर और नॉर का फार्मूला। ठीक है, वो भी बता दिया। तो अब यहाँ है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट मतलब टोटल हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी है या वो एन यू है, वो बाद में पता चलेगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैंने ए माना है, ए इज द सेट ऑफ द स्टूडेंट हु आर टीचिंग इंग्लिश, बी फॉर द अकाउंटेंसी एंड द सी फॉर इकोनॉमिक्स। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं अपनी तरफ से, तो मैंने यह मान लिया ए यूनियन बी यूनियन सी दे रखा है। एन ए दे रखा है, इंग्लिश रीड करने वाले 16, अकाउंटेंसी वाले 22 और इकोनॉमिक्स वाले जो हैं 26। और इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स यानी कि ए इंटरसेक्शन बी एंड
तो इन दोनों के दे रखे हैं 5, इन दोनों के दे रखे हैं बी एंड सी, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स के 14 दे रखे हैं, और 2 आर स्टडिंग ऑल द 3। ऑल द 3 का मतलब है जो तीनों पढ़ रहे हैं। पहले बोथ आता था, अब 3 के लिए बोथ नहीं आ सकता, तो ऑल द 3 लिखा होगा, जिसमें तीनों का इंटरसेक्शन आपको दे रखा है 2 के इक्वल। एंड इफ ईच स्टूडेंट स्टडीज एटलीस्ट वन ऑफ द 3 गेम, इसका मतलब कोई ना बच्चा किसी ना किसी काम में लगा हुआ है, हर एक बच्चा किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये जो टोटल स्टूडेंट थे वो एन यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो ए यूनियन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है जो इंग्लिश और अकाउंटेंसी दोनों पढ़ रहे हो, यानी कि ये इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में आपने निकालना है इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश के लिए था एंड अकाउंटेंसी बट नॉट, सॉरी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी ए एंड बी बट नॉट सी, ठीक है। तो वो स्टूडेंट निकालना है। अगर 3 का हो तो 3 के क्वेश्चनों में मोस्ट प्रोबेबली हम वेन डायग्राम से क्वेश्चन करते हैं। तो 3 का वेन डायग्राम कैसे बनता है सबसे पहले वो देख लीजिए। आप चाहें तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर वेन डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ध्यान से देखना, ये ए पोर्शन, ये ए बी सेट और ये सी सेट। दिस इज द वो होल पोर्शन। सबसे पहले इसको लिखते हैं हम कि वो पोर्शन है ये जहाँ पर ए बी और सी तीनों का इंटरसेक्शन आता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और ये जो पोर्शन है दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले मैं फार्मूला बताती हूँ। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, फिर ये देखते हैं ये किसका है कॉमन, ए और सी का। तो दिस इज द होल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एंड सी, क्लियर है। और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये है बी इंटरसेक्शन सी। तो ये पूरा ए का है, लेकिन अगर मैं ए ओनली की बात करूं तो दिस पोर्शन इज नोन एज ए ओनली, दिस वन इज फॉर बी ओनली और दिस वन इज सी ओनली। तो फिर इसमें तो आप कहोगे मैडम इस पोर्शन में तो ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और बी भी तो आ रहा है, लेकिन ये कॉमन ए और सी का है। अगर मैंने इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करना है तो ये मैं वो लिखूंगी जिसमें ए एंड सी बट नॉट बी। सो दिस इज द पोर्शन, ओके, फॉर ए एंड बी, सॉरी ए एंड सी बट नॉट बी, क्लियर है। अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो दिस इज द पोर्शन ऑफ ए एंड बी बट नॉट सी। दिस इज द पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज फॉर बी एंड सी बट नॉट ए। अब इसको शो कैसे करना है इस क्वेश्चन के लिए वो मैं आप दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेन डायग्राम ऑफ 3 सेट। मैंने